Very good afternoon, friends, and welcome to AMM lecture. Friends, since last almost two lectures of marketing, we have started our discussion on gap model. Right, we have discussed what is service quality and what is a gap model and what is circle. We also discussed that why we need to study gap model, right? That what exactly gap model helps into, right? Then we have studied this is the gap model that I'm talking about, right? So we already discussed it, and you must have the copy of it. Then we have discussed about each gap, right? That what is gap 1, what is gap 2, 3, 4, and 5, right? I told you that first four are the provider gap, and the fifth is customer gap, right? The first is known as knowledge, second is design gap, third is delivery gap, fourth is communication gap, and fifth is perception gap, right? This is the same which it's different way I have put forward. uh, Gap 5, that is customer gap, is difference between expectation and perception. Gap 1 is not knowing what customer expect. Gap 2 is not selecting the right service designs. Gap 3 is not delivering the services to the standard, and not I mean gap 4 is not matching with the performance as per promises, right? Then we have discussed last time we had our detailed discussion about gap 1, right? Gap 1 को हमने detail में discuss किया था. So today, alright, I told you that what is gap 1. It is a difference between expected services and the management perception of customer expectation, right? मतलब what customer want and company's perception about what customer want, right? That may be a difference. If there is a difference के company doesn't know what customer want, then it will have gap 1. And these are the reasons. That's what I discussed last time, that there are reasons for each gap, right? So these are the reasons for gap 1 to gap 1. So now let's get back to gap 2, right? So okay, now this is gap 2. So what is gap 2? As you can see, gap 2, right? Gap 2 is difference between company's perception of customer expectation and customer driven service designs and standards. Now what I mean, as I said, that gap 2 is difference between company's perception of customer expectations and customer driven service designs and standard. That means समटाइम्स इट हैपन, ज़रूरी नहीं है कि गैप 1 होता है, समटाइम्स गैप 1 नहीं होता है, राइट? गैप 1 नहीं होता है उसका मतलब क्या होता है? गैप 1 इज नॉट देयर मीन्स दैट कंपनी नोज व्हाट कस्टमर वांट, राइट? गैप 1 का मतलब क्या होता है कि कंपनी डज नॉट नो व्हाट कस्टमर वांट, बट समटाइम्स इट हैपन दैट कंपनी हैज़ एन आइडिया, कंपनीज परसेप्शन मे बी करेक्ट, right? So what is gap 2 now? That company's perception of customer expectation, matlab what company believe about customer expectation, right? What company feel about customer expectation, right? मतलब company customer के expectation को कैसे देखती है, right? और या फिर I can put it in a different way, that company's way of looking at customer expectation, right? कि how company look at customer expectation. And then there is a gap between company's perception and service planning, or I can put this in a simple way, this is service planning, right? अब क्या होता है, सी समझो, what is this gap all about? जैसे मैंने बोला कि ये जो है, right, this is company's perception about customer expectation, मतलब what you know about customers want, right? Or what company knows about customer expectation. See, if as a company, or if as a manager, as a service provider, you are aware, as a service provider, if you are aware, matlab, if as a service provider your perception regarding customer expectations are perfect, क्योंकि अगर परसेप्शन गलत है तो वो गैप 1 हो जाएगा, राइट? बट परसेप्शन गलत नहीं है, मतलब गैप 1 नहीं है, तो क्या हो सकता है? सी, इफ द परसेप्शंस आर परफेक्ट, मतलब इसका मतलब ये है दैट कंपनी नोज व्हाट कस्टमर वांट, राइट?
company knows what customer want, but when the gap 2 arises, that when company knows what customer want, but they are not able to plan the services according to it. समझे? See what I am saying कि what is gap 2? Gap 2 का मतलब ये है that company knows what is customer expectation or what are customer expectations, but when it comes to planning of services, right, when it comes to designing the services as per customer expectations, company is not able to make the plan effectively. अब मैं क्या बता रहा हूँ समझो. जैसे you are, let's take an example that you are a CEO, marketing head, or you can say that you are a customer head of any private bank, because bank is a service organization, right? अब आप किसी बैंक के बैंक के कस्टमर हेड हो और कस्टमर सर्विस हेड हो, फॉर एग्जांपल, राइट नाउ सी एज अ सर्विस हेड you know that customer perception or you know about customer expectation, right? That you are aware that customer want less waiting time, right? Customer want quick solution of its complaint, right? और ये आपको पता है, see you know your perception about customer expectation is perfect, right? That as a manager you are aware that what customer want. मतलब as an example I told कि as a manager you know what customer want, but when it comes to make the plan of services accordingly you are failed, मतलब you are not able to make the plan. जैसे मैंने बोला कि as a marketing head, as a service head, as a customer service head, right, you are aware that customer want quick service solutions, customer want quick solution of the complaint, right? ये customer want less waiting time, that is customer expectations, and you are aware of it. But when customer come to your customer come to your bank, you don't have designed the system wherein customer has to wait less time, right? You don't have designed the system wherein customer can get the solution of its query effectively, right? Many times it happens, suppose आप कोई बैंक का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, या कोई बैंक का कोई सपोज आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, या वॉट एवर, यू मस्ट बी हैविंग अ बैंक अकाउंट, राइट? अब या फिर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द एग्जाम्पल. तो मैनी टाइम्स व्हाट हैपन कि आप सपोज आपके ट्रांजैक्शन में कोई इशू हुआ, या आपका डेबिट कार्ड नहीं चल रहा है, या आपका कोई यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग बैंकिंग सर्विसेज. नाउ सी बैंक has given you the toll free number, but whenever you dial a toll free number, either you have to keep on holding the phone, or you don't get reply, or there is a long process to complete your query, right? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि कस्टमर को वेटिंग नहीं करना है, यू नो दैट कस्टमर वांट क्विक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, बट व्हेनेवर कस्टमर कम टू योर बैंक टू कंप्लेन अबाउट द प्रॉब्लम, right, customer has to wait for the long time. That means what? That means you don't have established a system in your bank, right? You don't have established a system in the bank wherein customer has to wait for the less time, or customer can get the quick solution of the complaint, right? So that is basically gap number 2, right? That is basically gap number 2. जैसे for an example कि सर्विस वेरिएबिलिटी इज़ अ बिग इश्यू इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, राइट? आपके साथ काफ़ी बार ऐसा हो, सी एज अ कस्टमर जब आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, राइट, और ऐसी रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट वेर इन यू विजिटेड अर्लियर, राइट, सो वेन एवर यू विजिट द सेम रेस्टोरेंट यू हैड एन एक्सपेक्टेशन कि लास्ट टाइम जैसा फूड मिला था, लास्ट टाइम जैसी सर्विस मिली थी, लास्ट टाइम जो क्वालिटी मिली थी, राइट, द सेम क्वालिटी यू शुड गेट दिस टाइम ऑल्सो, right? So these are your expectations, and even company people knows, मतलब the restaurant owners and the managers knows कि customer always want the same services as he has experienced earlier, right? कि customer को वही चाहिए जो उसे पहले मिला है, मतलब सी पहले अच्छी सर्विस मिली है, that is the reason customer has come again, right? So you know that customer want the same services or better services than the last time. अब कस्टमर जब आता है, राइट,
तो उसे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम द फूड वॉज बेटर देन दिस, राइट, लास्ट टाइम फूड क्वालिटी वॉज बेटर, टेस्ट वॉज बेटर देन दिस टाइम, लास्ट टाइम द सर्विस वॉज बेटर देन दिस टाइम। एंड होता है, ऐसा नहीं है कि ये कस्टमर का परसेप्शन है, दिस इज रियलिटी, right? It happens that last time you had a better food in the same restaurant, and today you are getting a low quality or deteriorating quality food in the same restaurant. Reason ये है कि company has no plan, company does not have any system to establish consistency in the food quality and taste, right? समझो कि आप रेस्टोरेंट के ओनर हो, राइट, तो कस्टमर आज आया, 6 महीने बाद आएगा, कस्टमर 1 साल बाद आएगा, कस्टमर 3 महीने बाद आएगा, कस्टमर मस्ट गेट द सेम क्वालिटी ऑफ द फूड एंड टेस्ट ऑफ द फूड वेन एवर ही कम्स टू योर रेस्टोरेंट, राइट? अगर आपने वो सिस्टम, अच्छा देयर इज़ अ सिस्टम, वो कैसे होता है वो शायद कभी मे बी फेस टू फेस लेक्चर में मिलेंगे तब बताऊँगा, होपफुली मिलेंगे, राइट? सो बट कंपनी हैज़ टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम, राइट, कि कस्टमर जब भी आए उसे सेम टेस्ट मिले, सेम क्वालिटी मिले। अगर आपकी कंपनी में वो सिस्टम नहीं है, राइट, इफ़ यू डोंट हैव द सिस्टम, ऐसा नहीं है कि शेफ सेम है तो टेस्ट सेम आएगा, नहीं आएगा, राइट? उसके लिए देयर इज़ अ सिस्टम विच यू नीड टू एस्टैब्लिश, वो है, होती है पूरी सिस्टम, आई विल एक्सप्लेन टू यू, राइट? सो अगर आपके पास वो सिस्टम नहीं है, दैट मीन्स देयर इज़ अ गैप नंबर 2, राइट? कि as a manager you know what customer want, but you as a manager you are not able to design, you are not able to plan the services according to customer expectation, समझे? मतलब आपको पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से आप प्लानिंग नहीं कर सकते हो, उसके हिसाब से आप सर्विस प्लान नहीं कर सकते हो, दैट इज़ गैप नंबर 2, राइट? अच्छा, अब नाउ देयर इज़ अ रीजंस, राइट, रीजंस फॉर गैप नंबर 2, ये अगर शायद नहीं दिखता है तो चलेगा, इसमें दिस रीजंस आर इम्पॉर्टेंट, राइट? There are 3 probable reasons for gap number 2. Gap number 2 के 3 रीज़न हैं. One is poor service design, मतलब service planning is not effective, right? As a marketing head or as a service head, right, you don't have prepared, you don't have planned your service effectively, right? Now what does it mean? What does poor service design mean? Poor service design means अ सर्विस प्लान, सर्विस डिज़ाइन मतलब सर्विस प्लान, डिज़ाइन का मतलब है प्लानिंग, राइट? अ सर्विस प्लान डज नॉट हैव एनी गोल और ऑब्जेक्टिव। काफ़ी बार ऐसा होता है कि सर्विस प्लान बनाया बट द सर्विस प्लान डज नॉट हैव एनी गोल और सर्विस प्लान डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्टिव, राइट? सो मेनी टाइम्स इट हैपन कि सर्विस प्लान हैज़ वेरी पुअर गोल एंड ऑब्जेक्टिव, right? And or it is lacking goal and objective. So basically service plan is lacking the goal and objective. You made a plan but there is no goal or there is no clear goal, right? आपने सर्विस का प्लानिंग बना दिया बट आपका गोल क्लियर नहीं कि कस्टमर का वेटिंग टाइम रिड्यूस होना चाहिए, आपका गोल ये क्लियर नहीं है कि कस्टमर शुड गेट द कंसिस्टेंसी ऑफ द क्वालिटी एंड द टेस्ट ऑफ द फूड, राइट? सो बेसिकली poor planning of services, that could be the reason number 1. Second reason is absence of customer defined standard, which is very important, right? कि काफ़ी बार सिर्फ प्लानिंग करना इनफ नहीं होता है. Many times it is important that you plan as per customer expectations, right? See what I have written: absence of defined customer defined service standard. See, who defines service standards? This is the biggest question. कि in any company, who decides service standards, service benchmark, right? Is it manager? ठीक है, yes, manager decides the service standard, but manager decides the service standard based on what? तो manager decides the service standard based on customer expectation. भले service standard, service quality या service का जो प्लान है, राइट, वो आप सेट करते हो, बट उसे डिफाइन कौन करता है? तो उसे कस्टमर डिफाइन करता है, राइट? इफ मतलब whenever you are making a plan, understand, as a manager, whenever you are making a plan, you have to keep the customer in the center.
इफ यू मेक प्लान फॉर योर कन्वीनियंस, योर कंफर्ट, काफ़ी बार होता है ना कि यार हमें ईजी लगना चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए वो बाहर में जाए, राइट। मैनी टाइम्स इट हैपन दैट हमें ईजी लगना चाहिए, राइट। कस्टमर को हम सेंटर में नहीं रखते हैं, हम अपनी कन्वीनियंसी को सेंटर में रखते हैं। सो व्हेनेवर एज अ मैनेजर यू आर मेकिंग अ प्लान by keeping your convenience in the mind and you're forgetting the customer, that is absence of customer defined services. So you, if manager doesn't consider the customer in the center, then the gap number 2 arises. So whenever you are making a service plan, right, whenever you are making a service plan, customer has to be in the center. The feedback, reviews, responses of customer हैज़ टू बी इन द सेंटर एंड सर्विसेज। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता रहा हूँ कि द सर्विसेज हैज़ टू बी प्लान्ड एज पर रिस्पॉन्सेज, फीडबैक एंड रिव्यूज ऑफ द कस्टमर। इफ इट इज़ लैकिंग दैट मीन्स गैप नंबर 2, राइट। कि सर्विसेज आर नॉट प्लान्ड एज पर रिव्यूज, रिस्पॉन्सेज, दैट इज गैप नंबर 2। गैप नंबर 3, आई एम सॉरी, द थर्ड रीजन, इनअप्रोप्रिएट फिजिकल एविडेंस एंड सर्विस गैप। इसका मतलब ये है कि फिजिकल एविडेंस मैंने 7 P's में पढ़ा था, राइट। व्हेन आई डिस्कस 7 P's, उसमें द 7th वन वाज फिजिकल एविडेंस। एंड मैंने बोला था फिजिकल एविडेंस मतलब द एरिया, द फिजिकल एरिया वेयर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, राइट। जैसे बैंक है तो बैंक का प्रेमाइस है, रेस्टोरेंट है, होटल का जो बिल्डिंग है, राइट, वो दैट इज़ फिजिकल एविडेंस, राइट। एंड many times it happen that physical evidence matlab you are building the service place, right. Physical evidence matlab the service place, right. Many times it happen that the service place may not be properly designed, right. matlab sometimes it happen, you know, आप काफ़ी रेस्टोरेंट में जाते हो तो you find it very congested, you find it, you know, very awkward situation, tables are arranged, राइट। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि यू विजिट अ रेस्टोरेंट और यू विजिट अ प्लेस wherein you don't find everything in a right in a right situation, right. तो काफ़ी बार that means something is wrong with the layout, with the service settings, राइट। तो फिजिकल, आप काफ़ी बार ऐसा होता है ना, आप कोई रिटेल मॉल में जाते हो तो रिटेल मॉल में, यू नो, आपको शॉपिंग का मज़ा नहीं आता है ना। वाई यू डोंट फील लाइक शॉपिंग? बिकॉज उधर का जो लेआउट है, उधर की जो डिज़ाइन है, उधर का जो फिजिकल एविडेंस है वो प्रॉपर नहीं है, राइट। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एसी एकदम धीरा होता है, गर्मी लगती है, राइट। काफ़ी बार ऐसा होता है कि इतना नॉइस होता है, इतना नॉइस होता है दैट यू डोंट फील लाइक स्टेइंग देयर, राइट। तो यू नो मैनी टाइम्स यू फील कि सारी चीज़ें बहुत बिखरी हुई है, यू नो, आप यू आर नॉट एन्जॉइंग द शॉपिंग और यू आर नॉट एन्जॉइंग इन द रेस्टोरेंट, राइट। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप एक टेबल, आपके टेबल के एग्जैक्ट, यू नो, बाजू में ही कोई और बैठा है, देयर इज़ नो गैप बिटवीन 2 टेबल्स, विच इज़, यू नो, ये दीज आर वीकनेसेस ऑफ द सर्विस, यू नो, सर्विस, पुअर सर्विस प्लान। तो इनअप्रोप्रिएट फिजिकल एविडेंस मतलब जो अपना सर्विस प्लेस है वो प्रॉपरली प्लान नहीं है, राइट। एंड दैट इज द रीजन द गैप नंबर 2 अराइजेस, राइट। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द गैप नंबर 3. यस, सो व्हाट इज गैप नंबर 3? मैंने बोला गैप मतलब डिफरेंस, ओके। सो गैप नंबर 3 इज व्हाट? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर driven service designs and standards and service delivery, right. Or you can say that it is a difference between service designs and service delivery. In short, gap number 3 means poor implementation of the service planning, right. What is gap number 3? Gap number 3 is result of poor implementation of service planning. क्यों? क्योंकि आप देखो, अब इफ़ यू लुक एट गैप 3, कस्टमर सर्विस डिज़ाइन और कस्टमर ड्रिवन सर्विस डिज़ाइन, मतलब मैंने बोला सर्विस प्लान है, ये भले इतना बड़ा जार्गन है बट इट इज़ सर्विस प्लानिंग, राइट. सो सर्विस, दिस इज़ सर्विस प्लानिंग एंड दिस इज़ सर्विस डिलीवरी. मतलब सर्विस प्लानिंग और सर्विस डिलीवरी के बीच में गैप है. इसका मतलब ये है दैट द सर्विसेज मे बी प्लान्ड वंडरफुली, सर्विसेज मे बी प्लान्ड एज पर कस्टमर एक्सपेक्टेशन. देखो गैप नंबर 2 नहीं है, तो गैप नंबर 2 नहीं है उसका मतलब क्या है, दैट सर्विसेज आर प्लान्ड एज पर कस्टमर वांट और एज पर कस्टमर एक्सपेक्टेशन, राइट.
तो अब गैप 3 क्या होता है कि सर्विसेज आर प्लान्ड प्रॉपरली, सर्विस का प्लानिंग में प्रॉब्लम नहीं है, प्लानिंग इज डन वंडरफुली, राइट, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सर्विसेज there are some locha, right, there are some problems, right. So many times it happen that customer driven standards and customer driven designs are used in planning, right, that planning is done as per what customer want, but delivery of the services not are not as per plan, matlab plan perfect hai but implementation problematic hai, right. So whenever the implementation of the services are not matching with the planning or not matching with the designs, the gap number 3 arises, right. Sometimes it happen, no, you just take the example जो मैंने आगे लिया उसी को हम carry forward करते हैं, that आप किसी बैंक में जाते हो, बैंक has a wonderful system, right, the bank has a wonderful system कि customer should not wait, तो बैंक का planning में problem नहीं है, right. Bank has established a good system that whenever customer comes, right, customer is not required supposed to wait for long time. काफ़ी बैंक है जहाँ पे now they have come out with a single window system. So what a single window system? पहले क्या होता था कि हर एक के लिए अलग अलग काउंटर होते थे, मतलब कैश विड्रॉ के लिए अलग काउंटर, कैश डिपॉजिट के लिए अलग काउंटर, अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट निकालना है तो कुछ अलग काउंटर, पासबुक है तो उसके लिए अलग काउंटर, तो उसमें क्या होता था कि टाइम लगता था. अब बैंक्स हैव डन व्हाट कि ऑल द काउंटर्स विल परफॉर्म एवरीथिंग, राइट. ऐसा नहीं कि पैसे इसी पे जमा होंगे, मतलब एक काउंटर जो होगा, राइट, सारे काउंटर सब काम करेंगे, तो दैट इज सिंगल विंडो सिस्टम, मतलब एक ही काउंटर पे सारे काम हो जाएंगे. तो सपोज पहले क्या था, 10 काउंटर है तो 10 काउंटर विल परफॉर्म 10 डिफरेंट फंक्शंस, बट नाउ मेनी बैंक्स हैव कम आउट विद 10 काउंटर विल परफॉर्म ऑल 10 फंक्शंस, समझे. तो इट विल सेव टाइम ऑफ द कस्टमर कि सपोज मुझे मुझे कुछ भी काम है तो 10 में से जो भी काउंटर खाली होगा उधर मैं चला जाऊंगा, राइट. पहले क्या होता था कि मुझे काम है और वहाँ पे भीड़ है और दूसरा काउंटर खाली है तो मैं उधर नहीं जा सकता था, क्यों, क्योंकि मुझे पैसे जमा करवाने हैं और जो काउंटर खाली है वो डिमांड ड्राफ्ट वाला काउंटर है. तो सी मैनी टाइम्स इट हैपन कि सर्विस प्लानिंग में लोचा है, बट अभी बैंक्स हैव कम आउट विद अ सिस्टम ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम, मतलब आजकल तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सारा ATM में हो जाता है, राइट. बट दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, राइट, कि सिंगल विंडो सिस्टम, ऑल द काउंटर्स आर परफॉर्मिंग एवरीथिंग. तो प्लानिंग इज वंडरफुल, बैंक्स हैव डन सुपर प्लानिंग so that customers are not required to wait for long time. But what happened कि many times it happened that at one counter, right, employee is not effective, right, or employees are not not sound, employees are not skillful. काफ़ी बार होता है कि काउंटर है बट एम्प्लॉय बहुत एकदम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, राइट, एम्प्लॉई के पास नॉलेज नहीं है, एम्प्लॉई के पास स्किल नहीं है, तो मैनी टाइम्स इट हैपन कि आपको वेट करना पड़ता है, राइट. प्लानिंग भले बैंक का सही है बट एम्प्लॉईज आर नॉट प्रॉपर, राइट, एम्प्लॉईज आर नॉट स्किल्ड इनफ, देन कस्टमर्स टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम, राइट. काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैनी टाइम्स इट हैपन दैट रेस्टोरेंट हैज़ वंडरफुल प्लानिंग, right, restaurant has wonderful planning of consistency of test or wonderful planning of services to the customer, but many times it happen कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो, काफ़ी बार होता है ना, आप रेस्टोरेंट में जाते हो एंड इफ़ यू कॉल वेटर, राइट, तो वेटर 5 मिनट बाद आएगा, फिर आप उसको पूछोगे कि आप ऑर्डर देने टाइम कि वेटर को पूछोगे कि इस डिश में क्या है, तो वो बोलेगा पता नहीं, मैं पूछ के बताता हूँ. तो दीज आर रॉन्ग सिग्नल्स, that means the implementation is going wrong, right, it means that implementation is wrong. तो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लानिंग ही गलत होता है, right. Sometimes if the planning is perfect, the implementation go wrong, and whenever the implementation and planning are not matching, understand, whenever the implementation and planning are not matching in the services, that means the gap 3 arises. That means there is a difference between service designs, that is a difference between service plan and service delivery. कि planning बहुत सही है, right, but when it comes to implementation there is problem, right. So that is difference between service plan and service delivery.
अब इसके रीजंस के व्हाट आर द रीजंस, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको सर्विस डिलीवरी को ऊपर ले लेना एंड कस्टमर ड्रिवन डिज़ाइंस एंड स्टैंडर्ड्स को नीचे ले लेना, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो अब इसमें व्हाट इज़ द प्रॉब्लम और व्हाट आर द रीजंस फॉर गैप नंबर 3। गैप नंबर 3 के रीजंस क्या है? सो गैप नंबर 3 के रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न इज़ पुअर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। मतलब योर एच आर, देखो सर्विसेज में एच आर हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, राइट। बिकॉज मैंने बोला था कि सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय पीपल, राइट। सो एच आर, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। कि अगर आप सपोज यू आर इन रेस्टोरेंट और यू आर इन बैंक और यू आर इन एनी सर्विस इंडस्ट्री, if you are not pick the right person, if your employee selection was wrong, right, आपका employee selection गलत है या आपने उसको proper training नहीं दी है, तो what happened that a poorly trained employee may not be able to implement the services properly, right, because see employee को training ही नहीं मिली है तो उसको कैसे पता चलेगा कि planning को कैसे implement करना है, right? So a poor training of employee, a poor selection of employee, right? So poor human resource policy in general, कि कंपनी के पास HR की कोई इतनी स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं है, right? That means the service implementation may be problem, because ultimately who implement the services? Ultimately it is the people, right? It is the HR who implement the services, राइट। प्लानिंग तो हो गया बट इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? तो इट इज़ द पीपल, इट इज़ द HR ऑफ द कंपनी हु इम्प्लीमेंट द सर्विसेज। सो पुअर इम्प्लीमेंटेशन मे बी द रीज़न नंबर 1। सेकेंड रीज़न इज़ फेलियर टू मैच द सप्लाई एंड डिमांड। मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्लानिंग हमने जो किया है, लेट्स से वी हैव कैप्ट द प्लान ऑफ, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसका, सप्लाई नॉट मैचिंग द सप्लाई एंड डिमांड। अभी तो ठीक है, अभी कोरोना चल रहा है तो अभी तो कहीं पे भी जाओगे शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जब ये कोरोना नहीं था, राइट, बिकॉज अभी पूरी दुनिया दो टाइम में जी रही है, प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना, राइट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट प्री कोरोना सिनेरियो, BC जो बोलते हैं ना, 200 BC, एंड तो वही बस पोस्ट कोरोना सिनेरियो, राइट। कुछ समय पहले जब कोरोना नहीं था, राइट, डोंट वरी, कुछ समय बाद नहीं होगा, बी पॉजिटिव, राइट। तो जब व्हेन दिस थिंग्स वर नॉट देयर, अब कभी भी कोई अच्छी रेस्टोरेंट में संडे जाते थे, यू यूज टू एक्सपीरियंस लॉन्ग वेटिंग टाइम, राइट। अब वो कितना भी अच्छा रेस्टोरेंट है बट वहाँ पे मतलब प्रोफेशनली मैनेज चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, राइट, बट वहाँ पे भी वेटिंग बहुत लंबा होता था। वहाँ पे भी आपको ऐसा लगता था कि यार क्या दिमाग ख़राब हो गया, राइट। रीज़न इज डिमांड एंड सप्लाईज आर नॉट मैचिंग। मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट है बट आपने प्लानिंग जो किया है, मतलब आपका सप्लाई, सी कंपनी का प्लानिंग इज सप्लाई, मतलब आपने सप्लाई अपने पास जो है वो 100 कस्टमर का है, एंड जब डिमांड आती है वो 150 कस्टमर से आती है। सो व्हेन देयर इज़ अ मिसमैच, right, when there is a mismatch between demand and supply, that you made a plan, company has made a plan for 100 customer or company has made a plan for let's say 500 customer, but if you get the demand for more than 500, मतलब जो अपने समझो कि if your supply plan is not matching with the demand, right, that supply plan was made for 500 customer and demand is coming from 700 customer, now it is irrespective कि आपका प्लानिंग कितना सही है, you won't be able to fulfill the demand of the 700 customer, right, कि आप 700 कस्टमर की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाओगे because you have made the plan of 500 and then the implementation arises because 500 का प्लान कर दिया है, 600 कस्टमर आए हैं, 700 कस्टमर आए हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन में there must be problem. नेक्स्ट रीज़न इज़ ज़रूरी नहीं है कि सारी गलती कंपनी की ही होती है, कस्टमर की भी कुछ ड्यूटी होती है। सी कस्टमर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शन, राइट। कस्टमर मैनी टाइम्स एक सिंपल चीज़ है, मैंने आई हैव एक्सपीरियंस इट मैनी टाइम के
रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में लिखा होता है कि वेटिंग टाइम इज़ 10 मिनट, यू नो, मतलब वंस यू ऑर्डर, राइट, इट विल टेक 10 to 15 minutes टू डिलीवर द फूड. काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं, इन बिटवीन हमें याद आता है कि ये दिस इज़ व्हाट आई वांट टू ट्राई, राइट, हमारा मील ऑलरेडी शुरू हो गया है एंड इन बिटवीन हमें याद आता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू ट्राई. अब आप ऑर्डर देते हो, राइट, फूड टेबल तक आने में 10-15 मिनट लगता है बिकॉज यू पुट द ऑर्डर, राइट, इट विल टेक टाइम 10 to 15 minutes, राइट. अब क्या होता है कि द कस्टमर बिकम इम्पेशेंट, राइट, कि यार कितनी देर हो गई, कितना जल्दी जल्दी लाओ, यू नो, पता नहीं चलता है क्या कर रहे हो. सो कस्टमर इज नॉट कीपिंग द पेशेंस एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ सर्विस डिलीवरी, राइट. काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी सर्विस प्लेस पे यू आर फाइंडिंग सम नोटोरियस कस्टमर्स, राइट. आप रिटेल मॉल में जाते हो, काफ़ी बार ऐसा देखते हैं कि रिटेल मॉल में हम जाते हैं ना, तो कस्टमर एक चीज़ जहाँ से उठाता है फिर उसे लगता है कि ये नहीं लेनी है तो दूसरी जगह पर रख देता है. मतलब मैनी टाइम्स यू नो व्हाट हैपन कि आपने लेट से साबुन उठाया, साबुन जहाँ पे पड़े थे वहाँ से यू पिकअप द बंच ऑफ सोप्स, उसको अपनी कार्ट में रखा और फिर आगे जाके यू नो आपको दिमाग में आया कि नहीं लेने हैं. तो अब कस्टमर आइडियली आपने जहाँ से साबुन उठाए थे वहाँ पे रखने हैं, बट आइडियली सी व्हाट हैपन कि अब मुझे यहाँ पे दाल चावल का काउंटर यू नो रैक दिखाए तो साबुन को दाल चावल के बाजू में रख देंगे. तो दैट इज रॉन्ग. इट इज सी एज अ कस्टमर इट इज योर ड्यूटी दैट यू हैव पिक अप द सोप फ्रॉम पर्सनल केयर रैक, तो यू हैव टू कीप इट इन द पर्सनल केयर रैक. नाउ हाउ कैन यू पुट इट इन द ग्रोसरीज रैक, राइट. अब वहाँ पे कंपनी कुछ नहीं कर सकती, राइट. वाई? बिकॉज कस्टमर इज नॉट फुलफिलिंग देयर रोल्स. तो एज अ कस्टमर it is your duty, right, to follow certain moral grounds, certain moral actions, right. आपकी भी कुछ ड्यूटी होती है and if customer don't follow his duty and you know customer don't follow the certain you know etiquettes, then service, I mean gap 3 arises. And service intermediary, कभी you know sometimes it happen कि आपने सब कुछ सही किया है but you know your plan is perfect, but your intermediary मतलब आपकी franchisees are intermediary, agents are intermediaries, right. आपकी franchisees है, आपके agent है, right, they are not properly trained, they are not delivering services as per planning. जैसे I'm sorry, जैसे मैकडोनाल्ड है, right. अब मैकडोनाल्ड, you all are aware that it is running on franchisee base, right, और franchisee model. तो मैकडोनाल्ड जो है उनका ऐसा है कि वहाँ पे if you are aware there is a policy. मैं तो like I have been to मैकडोनाल्ड in 2004, उसके बाद कभी नहीं गया हूँ, right. और आपको कोई एडवाइस देता हूँ मत जाना बिकॉज उसके पीछे लंबी स्टोरी है, शायद एक बार क्लास में बताई थी, फिर मिलेंगे तब बताऊँगा, ठीक है. ओके, सो यू नो अच्छा ठीक है, अब एग्जाम्पल पे आते हैं. सो बेसिकली यू नो व्हाट हैपन कि यू गो टू मैकडोनाल्ड हैज़ अ पॉलिसी. अब ये पॉलिसी हुई है डिसाइड सेंटर से, मतलब द यू नो द मेन मैकडोनाल्ड विच इज इन यूएस. तो हेड ऑफिस की पॉलिसी है कि कस्टमर ऑर्डर देता है और उसमें 1 मिनट से ज़्यादा लगता है, राइट, देन कस्टमर गेट फ्रेंच फ्राइज फ्री. शायद पता है, नहीं पता है, आई एम नॉट श्योर, राइट, बट दिस इज द पॉलिसी. अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि यू नो कस्टमर ऑर्डर दे देता है, मतलब सी लॉजिक ये है कि कस्टमर शुड नॉट वेट फॉर मोर देन 1 minute, राइट, एट अ काउंटर टू गेट हिज ऑर्डर, राइट. अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि 1 मिनट की पॉलिसी है बट फ्रेंचाइजीज आर नॉट कीपिंग दैट पॉलिसी. आप काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप 1-1.5 मिनट 2 मिनट खड़े रहते हो, राइट. काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप टेबल पे बैठ जाते हो और फिर बाद में लेने जाते हो. सो दैट मीन्स द फ्रेंचाइजीज और एजेंट्स आर नॉट कीपिंग देयर प्लान रेडी, और एजेंसीज एंड फ्रेंचाइजीज आर नॉट फॉलोइंग एज पर प्लानिंग. मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, आपने प्लान बना के दे दिया, राइट. यू हैव मेड द प्लान and you have given the plan to your franchisees, you have given the plan to your agencies, but now see when agencies are not fulfilling the plan, matlab your intermediaries are not fulfilling the plan, that means gap number 3 will come, right. So that is about gap number 3. Now let's get back to gap number 4.
बताते कुछ और हो और देते कुछ और हो, है ना, वही हुआ, राइट। एक ऐड आती थी, बहुत पुरानी ऐड थी, गुड डे बिस्किट की, बहुत पुरानी, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी ओल्ड ऐड, राइट। उसमें एक सरदार जी थे, लाइक वो एक बिस्किट खरीदते हैं, बिस्किट के पैकिंग में बहुत सारे काजू दिखते हैं, बिस्किट में बहुत सारे काजू दिखाते हैं एंड जब वो पैकिंग खोलते हैं तो बिस्किट में काजू ही नहीं होते, तो वो सरदार जी बोलते हैं वो ये बिस्किट पैकिंग पे इतने काजू, बिस्किट में नो काजू। तो मतलब काफ़ी बार होता है ना ऐसा कि आप बहुत एकदम अपनी सर्विसेज का एकदम रोज़ी पिक्चर क्रिएट कर देते हो, राइट। कस्टमर देख के फैसिनेट हो जाता है, कस्टमर देख के पागल हो जाता है कि यार इधर ही जाना है, और जब जाते हो तो कुछ नहीं मिलता है, राइट। मैनी टाइम्स इट हैपन, लाइक आई यूज टू टेल इन द क्लास मैनी टाइम्स, जब मैं ये पढ़ाता था, राइट, कि काफ़ी रिसॉर्ट्स होते हैं, काफ़ी होटल्स होती हैं, तो वो लोग अपनी वेबसाइट पे एक जोरदार स्विमिंग पूल दिखाते हैं, एंड जब आप जाते हो तो आई यूज़ टू कॉल इट से इन गुजराती, कि वेबसाइट पे बहुत बड़ा एकदम ग्रैंड एकदम एलिगेंट स्विमिंग पूल दिखाते हैं, एंड जब जाते हो तो पानी नू खागो चुई ना हो मैनी टाइम्स। सो सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि sometimes it happens, see external communication, okay, now what is gap number 4? Gap number 4 is difference between external communication to the customer and service delivery। मतलब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, इवेंट्स एंड ऑल दोज, मतलब you are promising, you're communicating your customer about services, but when it comes to delivery you are not keeping the promises, right। आप कस्टमर को, एक सिंपल चीज़ है कि आप कस्टमर को ये बोलते हो, सपोज यू आर गिविंग एन एड, right, suppose a company gives an ad that you will get 50% discount. I'm just keeping it general, right, that if a company gives an ad that your customer will get 50% discounts on the order, right, and उधर no terms and condition, कुछ नहीं है, वो स्टार भी नहीं होता है टर्म्स एंड कंडीशन का, राइट, एंड जब वो आपके ऊपर बिल आता है तो उसमें 50% डिडक्ट नहीं किए होते हैं। इट्स सिंपल, राइट, कि कस्टमर हैज प्रॉमिस टू ऑफ गिव यू 50% डिस्काउंट, right, but when it comes to ordering and when it comes to billing part, company doesn't offer you the 50% discount। तो आपने कस्टमर को कम्युनिकेट तो किया था that customer will get 50%, but when it comes to actual delivery of the discount, right, customer don't get discount, so that is gap number 4। Many times it happen that companies are showing something in their ad, companies are communicating something in their advertisement or on their websites and in their messages and promotional offers, but when it comes to actual delivery of the services, customer may experience that the promises made by company is not fulfilled, right, and whenever company is not able to fulfill the promises which it has which it has put on external communication, which it has it had communicated to the customer, then customer may feel gap number 4, right। So in short it is very simple that advertising or communication or discounts or कुछ भी, something that is communicated to the customer and those communication or those promises are not fulfilled to the customer, right, and then customer may feel annoyed, customer may feel dissatisfied, right। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप किसी रिसॉर्ट में या किसी होटल में बुकिंग करवाते हो तो they show a wonderful room on their website and they may tell you कि will upgrade you to the upper category room, right, हम आपको अपग्रेड करेंगे अपर कैटेगरी रूम में, पूरा लिखा हुआ होता है, बट see whenever you visit there they might say that we are not able to upgrade you to the upper category room, or they might say that मतलब आप सोचते हो कि रूम वहाँ पे जो दिखता था और इधर जो है उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। तो that means there is a gap number 4, marketing communication is not matching with the actual service delivery, right, so then the gap number 4 arises। अच्छा, अब reasons क्या है, what are the reasons for gap number 4? so as you can see what simple reason है, not I mean lack of integration of marketing communication, मतलब advertising, that is marketing communication, and
सर्विस प्लान दोनों के बीच में लिंकअप नहीं है, राइट। कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है, राइट, तो उस टाइम पे कंपनी हैज़ टू लिंक विथ द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बिकॉज जब सर्विस प्लानिंग करते हैं तब हमें ये भी देखना है कि हमने कस्टमर को क्या प्रॉमिस किए हैं, राइट। एंड देयर इज़ नो लिंक, देयर इज़ नो इंटीग्रेशन बिटवीन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड एडवर्टाइजिंग, राइट। कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में देयर इज़ no integration, and whenever there is no integration, whenever there is no understanding between the marketing department or between the planning department and the advertising department, then the gap number 4 comes. दूसरा, inadequate customer expectations. कभी कभी कस्टमर की गलती भी होती है, मतलब कस्टमर कुछ देखता है ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी और कस्टमर कुछ पढ़ता है, right, and customer see that there is 50% discount, right, but उसमें फिर लिखा होता है कि offer valid till stock last, या फिर उसमें लिखा होता है कि applicable only on Monday to Friday. अब आप सैटरडे संडे चले जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे तो चाहिए 50% डिस्काउंट बिकॉज आपने लिखा है, बट सी इट इज़ इनएडिक्वेट डिमांड फ्रॉम द कस्टमर. कंपनी हैज़ ऑलरेडी मैंशन that offer valid during weekdays, right? Offer is valid during weekdays, मतलब Monday to Friday. Now if you are asking for the offer on Saturday Sunday, then company won't be able to satisfy, because company has clearly mentioned कि offer is not valid on Saturday Sunday. So inadequate customer demand, customer is asking for something which is not correct or which is not as per company's communication. मतलब कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी ने बोला नहीं है फिर भी हम मांगते हैं. सो दैट इज देन देयर इज गैप नंबर 4, ओवर प्रोमिसिंग. कभी कभी कंपनी बोलती है ना हम चांद तारे तोड़ लाएंगे. अब कस्टमर ने मांग लिए तो क्या करोगे, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट, कि किसी को बोलना मत कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा, बिकॉज कोई मांगेगा तो हालत ख़राब हो जाएगी, राइट? सो दैट्स व्हाट ओवर प्रोमिसिंग. Actually sometimes it happens that company promises more than it can deliver, right? Company promises more than it can deliver just to attract the customer, and then the problem starts. Because see, whenever you are trying to attract the customer, company promises more than it can deliver, and whenever customer is attracted and whenever customer put his demand, right, company may not be able to fulfill. Why? Because company has promised something more than its capacity, right? काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ हैपेंड लाइक, मुझे याद है जब बिग बाज़ार ने सबसे पहले बिग बाज़ार फर्स्ट टाइम इन समवेयर अराउंड 2004-5, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट 2004-5 के आसपास बिग बाज़ार हैज़ कम आउट विद द फर्स्ट टाइम दैट ऑफर वाज सबसे सस्ते 3 दिन, and those 3 days were 24, 25 and 26th of January, right? Every 26 जनवरी के 3 दिन company has come out with the scheme called सबसे सस्ते 3 दिन, and वो 3 दिनों में company has started selling their products already on 50+ more discount. 50% से ज़्यादा डिस्काउंट पे बेचने लगे रखे थे. And you won't believe, राइट, कंपनी ने प्रॉमिस कर दिया था कि इतनी सारी चीज़ें ये रेट पे हम बेचेंगे, राइट, एंड कस्टमर्स का इतना बड़ा फ्लो हुआ दैट कंपनी हैज़ नॉट एक्सपेक्टेड, राइट. अब कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं था उतनी क्वांटिटी में गुड्स को 50% से ऊपर बेचना, राइट. तो मैनी टाइम्स फिर उस टाइम पे ऐसा हुआ, कंपनी ने फिर वहाँ पे कंडीशंस लगानी शुरू कर दी. पहले देयर वाज नो कंडीशन एंड देन कंपनी हैज़ कम आउट विद द कंडीशन, बिकॉज कंपनी ने देखा कि द डिमांड इज़ कमिंग बियॉन्ड कैपेसिटी, राइट. तो आप कभी कभी बहुत ओवर प्रॉमिस कर देते हो, एंड व्हेन द एक्चुअल डिमांड कम्स कंपनी मे नॉट बी एबल टू डिलीवर. तो दैट इज़ द रीज़न. एंड द नेक्स्ट रीज़न इज़ इनएडिक्वेट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. इनएडिक्वेट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन. जो पहले मैंने बोला वही पॉइंट है एक्चुअली. इट इज़
lack of communication between two departments, right? That's what I told you earlier. Okay, lack of communication between two departments, lack of communication between advertising department and planning department, right? Yeah, lack of communication between advertising manager and the service customer manager, right? और customer service manager, right? तो दोनों के बीच में गैप होता है कि सर्विस, see, advertising manager is not able to, or advertising manager could not communicate कि what it has advertised. So before advertising manager puts some advertising, he has to confirm it with the service manager, right? But service manager और advertising manager के बीच में communication में gap होता है, then the 4 number gap may be arise. Okay, now 5th gap. अब ये जो 5th gap है, मैंने पहले भी बोला था कि gap 5 is not a real gap. It is perceptual gap, right? Gap 5 जो है वो perceptual gap है, right? वो real नहीं होता है, right? So gap 5 is commonly known as perceived quality gap. मतलब there is quality gap but it is perceived, मतलब the gap as seen by customer, and it may be right, it may be wrong, right? तो perceived quality gap मतलब gap of services और gap of service quality as seen by the customer. Customer ने gap किसके हिसाब से? कस्टमर के हिसाब से. एक्चुअली में it may be there, it may not be there. So that is gap number 5. और gap number 5 is difference between, जो मैंने पहले भी बोला था. Let me go back and so that you can understand better. हाँ, अब आप gap number 5 क्या है? Expected service and perceived service का difference. मतलब आपको कुछ चाहिए, that is your expected services, and आपको जो सर्विस मिल रही है उसको आप कैसे देख रहे हो, that is perceived services, right? And perceived services मतलब how you as a customer see the services. So कभी कभी क्या होता है कि आपका एक्सपेक्टेशन और आपको एक्चुअल सर्विस जो डिलीवर हो रही है उस टाइम पे आप सर्विस को कैसे देखते हो, दोनों में गैप होता है, राइट? एंड दैट गैप में बी एक्चुअल और इट मे नॉट बी एक्चुअल. वो रियल हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, राइट? सो इसमें क्या लिखा है? गैप में बी 5 में बी आइडेंटिफाइड एज ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड सर्विसेज एंड परसीव्ड सर्विसेज. गैप 5 इज रिजल्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ गैप 1 to 4. कभी कभी ऐसा होता है कि गैप 5 जो आता है वो 1 2 3 4 का रिजल्ट होता है. मतलब कस्टमर ने गैप 1 कहीं पे फील किया, गैप 2 कहीं पे फील किया, गैप 3 कहीं पे फील किया, या गैप 4 कहीं पे फील किया, राइट? कस्टमर को लगा कि यार राइट कंपनी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट, दैट इज़ गैप नंबर 1. कस्टमर मे फील दैट company is not able to plan the services as per my needs, that is gap number 2. Company is not able to deliver the services as per planning, that is gap number 3, right? Company is not keeping the promises, that is gap number 4. मतलब चारों गैप मिलके उसका जो रिजल्ट आता है that is gap number 5, right? कस्टमर को ये लगता है कि मैं जो सोच रहा था और मुझे जो सर्विस मिल रही है, समझो कस्टमर में फील दैट व्हाट आई एम थिंकिंग and whatever I am getting, there is a difference. So whenever the difference is there between customer expectation and customers way of looking at the services, it is gap number 5, right? And gap number 5 is maybe outcome of all 4 gap. चारों गैप मिलके गैप नंबर 5 क्रिएट करते हैं, right? सो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर शेप बाय, जो मैंने पहले बोला था कि कस्टमर एक्सपेक्टेशन कहाँ से आता है. तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, पर्सनल नीड्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस से आता है, राइट? तो हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है और जब हम एक्चुअल सर्विस लेने जाते हैं, राइट, तो शायद वो सर्विस हमारे एक्सपेक्टेशन के साथ मैच नहीं करती है, ऐसा हमें लगता है. दैट्स व्हाट वी फील. इट मे बी करेक्ट, इट मे नॉट बी करेक्ट. एक एग्जांपल देता हूँ जस्ट टू क्लैरिफाई ऑन गैप नंबर 5, राइट? आप सपोज किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, राइट, एंड यू हैड वेरी हाई एक्सपेक्टेशन, राइट? व्हाई? बिकॉज यू विजिटेड देयर अर्लियर. आप उस पर पहले गए थे और आपको बहुत मज़ा आया था, राइट? फूड वॉज नाइस एंड एम्बियंस वॉज वंडरफुल एंड सर्विसेज वर फैंटास्टिक, राइट? एवरीथिंग वॉज परफेक्ट. अब आज सपोज आप 1-2 महीने बाद फिर से वहाँ पे जा रहे हो,
right? So your expectations are high. Why high? Because you had wonderful experience there earlier. अब सपोज आप वहाँ पे जाते हो और सब कुछ पहले जैसा ही है, बट यू आर नॉट इन अ राइट मूड एज अ कस्टमर. You have some tension, right? Or you are all together in different mental state, right? ऑफिस का कुछ टेंशन है, फैमिली का कुछ टेंशन है, घर का कुछ टेंशन है, या समथिंग इज देयर इन योर माइंड. तो क्या होता है कि even though services are perfectly designed, services are perfectly delivered as you experience earlier, but because you are not in a good mental state, because you are not in a right condition, you may feel कि यार आज पहले जैसा मज़ा नहीं आया, और customer may feel that I'm not getting services as I expected. Why? Because customer is not in the right condition. कभी कभी होता है ऐसा, राइट? तो ये हमेशा कंपनी की गलती नहीं होती है, प्रोवाइडर की गलती नहीं होती है, कस्टमर की भी गलती होती है. दैट और कस्टमर का भी प्रॉब्लम होता है दैट कस्टमर मे नॉट बी इन अ राइट कंडीशन, और कस्टमर मे नॉट बी इन अ राइट स्टेट ऑफ साइकोलॉजी और मेंटल स्टेट, और कस्टमर के इमोशंस कुछ ख़राब है, कस्टमर का दिमाग कुछ ख़राब है, एंड देन कस्टमर इज़ रिसीविंग द सर्विसेज as he has experienced earlier, but he may not see that services as per earlier. आपको वही मिल रहा है जो आपको पहले मिला था, बट आपको अभी मज़ा नहीं आ रहा है. वाई? बिकॉज यू आर नॉट इन अ गुड मूड, योर इमोशंस आर हर्ट, और यू आर वरीड अबाउट समथिंग, यू हैव टेंशन अबाउट समथिंग, यू आर अंडर स्ट्रेस. तो आपका परसेप्शन ये बोलेगा कि यार आज मज़ा नहीं आया. एक्चुअली ऐसे होता नहीं है. समटाइम्स इट हैपन दैट इट इज़ नॉट करेक्ट ऑलवेज, राइट? सो मैंने बोला कि गैप नंबर 5 इज़ अ परसेप्चुअल गैप. इट मे बी देयर, इट मे नॉट बी देयर. इफ इट इज़ देयर, सपोज वो होता है तो क्यों होता है? इट इज़ एज आई सेड, इफ इट इज़ देयर देन इट इज़ द टोटल ऑफ 4 गैप्स. आगे वाले 4 गैप मिलके 5वां गैप बनाते हैं, राइट? बट कभी कभी नहीं भी होता है. इट मे नॉट बी देयर. वाई इट मे नॉट बी देयर? इट मे नॉट बी देयर बिकॉज customers mental state may not be correct, right? And customer see that there is a gap, but there is no gap actually, right? Reasons can be cultural background, family lifestyle, personality. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पर्सनालिटी या हमारा फैमिली कंडीशन या हमारा कल्चर, राइट, हम कहीं पे जाते हैं उससे मैच नहीं करता है, राइट? सर्विसेज परफेक्ट है, राइट? हम सपोज किसी होटल में जाते हैं, या हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम किसी कहीं पे जाते हैं, बट हम जिस कल्चर से आए या हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, राइट, और हमारी जो पर्सनालिटी है उसको वो सर्विस प्लेस मैच नहीं करता है, राइट? देन जैसे काफ़ी सारे अहमदाबाद में देयर आर लॉट ऑफ गेम जोन्स, राइट? देयर इज़ वन गेम जोन ऑन ऑन दिस SBR, राइट, सिंधुवन रोड. तो काफ़ी सारे गेम जोन्स हैं अहमदाबाद में, बट personally, suppose if I talk about myself, right, then I don't believe adventures in game zones. I believe adventure should be there in treks. Trekking पे चले जाओ, mountaineering पे चले जाओ, that is a real entertainment, right? or that is real adventure. I personally dislike the game zones. तो अगर मैं game zones में जाता हूँ, then also I don't enjoy much. Alright, I enjoy much in mountaineering and trekking and walking in the nature and all. तो suppose वो मेरी पर्सनालिटी नहीं है, एंड कभी मैं उस ऐसे सर्विस प्लेस पे चले जाता हूँ विच इज़ नॉट फिट टू माई पर्सनालिटी, राइट? देन आई मे डिसलाइक इट, राइट? तो मैनी टाइम्स इट हैपन कि माई पर्सनालिटी इज़ नॉट मैचिंग विद द सर्विसेज, और डेमोग्राफिक्स एंड एडवर्टाइजिंग एंड एक्सपीरियंस विद सिमिलर सर्विसेज. मतलब पहले आप कहीं पे गए हो, सपोज आप पहले कोई बहुत अच्छी रेस्टोरेंट में जाते हो, एक ब्रांडेड चेन ऑफ रेस्टोरेंट, और आप फिर उसको दूसरी रेस्टोरेंट की सर्विस के साथ कंपेयर करते हो, तो आपको लगता है कि यार दैट वाज बेटर. सो मेनी टाइम्स इट हैपन दैट व्हेन कस्टमर कंपेयर द सर्विस ऑफ वन रेस्टोरेंट विद द अदर, और सर्विस ऑफ वन company with the service of other company, like if you have an account with ICICI Bank and if you have an account at HDFC, so you will always compare ICICI and HDFC. So that comparison may create a gap number 5, because आपको psychologically ये लगता है कि HDFC शायद बेटर है या ICICI बेटर है, राइट? सो कंपैरिजन, राइट, कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर सर्विसेज मे कॉज द गैप नंबर 5, राइट? एंड मैंने बोला इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन, मतलब समटाइम्स यू रीड समथिंग ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, राइट? आपने कंपनी की वेबसाइट पे कुछ पढ़ा, एंड वो पढ़ के आप एक्चुअली गए,
राइट, एंड यू मे नॉट, कंपनी वही प्रोवाइड कर रही है बट आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं, राइट, एंड यू मे नॉट फील कि जो वेबसाइट पे था वही मुझे मिल रहा है. सो दैट इज गैप नंबर 5. गैप नंबर 5 पे इतना डिस्कशन की जरूरत नहीं. गैप फर्स्ट 4 गैप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. बिकॉज मैंने बोला गैप 5 इज़ अ वर्चुअल गैप, इट मे बी देयर, इट मे नॉट बी देयर. अगर नहीं है, क्यों नहीं है, तो मैंने बोला कि इट इज़ अ वर्चुअल गैप, राइट. मतलब कस्टमर मे फील कि कस्टमर मे नॉट बी इन गुड मूड और गुड साइकोलॉजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट, एंड ही मे फील दैट सर्विसेज आर नॉट परफेक्ट. एंड अगर होता है तो क्यों होता है? गैप, इफ गैप 5 इज देयर, देन it may be the outcome of first 4 gaps, right. Now how to close the gap, मतलब how to fill those gap, बहुत सिंपल है. मैंने ऑलरेडी बता दिया था बट दिस इज जस्ट अ रिपीटेशन कि गैप नंबर 1 को अगर आपको क्लोज करना है तो गैप नंबर 1 क्या था? गैप नंबर 1 था नॉलेज गैप. मतलब कंपनी डजंट नो व्हाट कस्टमर वांट. सो नेचुरली टू फिल द गैप 1, to close the gap 1, learn what customer want. मतलब do research, do survey, have customer feedback, right. सीखो, समझो, see, know what your customer want, and if you know what your customer want, then only you will be able to close the gap number 1. But the question is, how would you know that what your customer want? So to know what your customer want, you have to simply do the research, you have to simply communicate, talk with the customer, get the feedback with the customer, from the customer. Then you will be able to understand that what your customer want. In short, have a communication with the customer, and when you have a right communication with the customer, you will know what your customer want. And when you know what your customer want, you'll be able to fill the gap number 1, right. Gap number 2. What is the gap number 2? Difference between management perception of customer expectation and service designs and standards. मतलब आपको पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए बट वो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो. सो दैट इज गैप नंबर 2. नाउ दिस गैप नंबर 2 अराइजेस, उसको फिल करना है तो क्या करोगे? एस्टेब्लिश द राइट सर्विस क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड. सिंपल है. प्लान योर सर्विसेज as per what customer want. This is very simple, right? If company wants to fill the gap, then company should know what customer want, and if you know that what your customer want, so simply design your services, as per what customer want, right. Fill the gap number 3. Ensure the service performance meets the standard. मतलब gap number 3 क्या था कि planning and implementation में there is a gap. सो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का गैप फिल करना है, उसको क्लोज करना है, तो ट्रेनिंग दो एम्प्लॉयज़ को. मेक एम्प्लॉय इफेक्टिव, मेक एम्प्लॉय स्किलफुल, राइट. मेक देम लर्न व्हाट इज़ द प्लान. एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करो, राइट. एंड जस्ट इंश्योर कि जो हमने प्लान किया था उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. कंट्रोलिंग, समझो, राइट. कंट्रोलिंग इज द मेजर एस्पेक्ट ओवर हियर इन द थर्ड गैप, राइट. सी दैट whatever you have planned, whatever company has planned, exactly the performance is done as per plan. उसी हिसाब से हमारा कंपनी का परफॉर्मेंस चल रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल मीटिंग द सर्विस स्टैंडर्ड्स विद द परफॉर्मेंस, राइट. इन शॉर्ट, टू फिल द गैप वी हैव टू एंश्योर दैट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन बोथ आर सेम. एंड गैप नंबर 5, एंश्योर डिलीवरी मैचेस विद द प्रॉमिसेस. मतलब सिंपल है. गैप नंबर 4 क्या था? there is a gap between external communication and actual delivery. मतलब मैंने बोला था कि आप बहुत सारा प्रॉमिस कर देते हो बट you don't deliver. So ensure either you don't promise much, and if you have promise, मतलब अगर आपने प्रॉमिस कर दिया है I'm sorry, then ensure that your promises are delivered to the customer. Right? In short, whatever you are saying on advertising, whatever company says on mass media, whatever company promises on media, whatever company promises to the customer, company has to ensure that all its promises are kept. Right? उसके सारे promise company को follow करने हैं. Right? So that is about filling the gap number 1, 2, 3, 4. Because fifth gap हमारे हाथ में नहीं है. राइट. मैंने बोला था कि फिफ्थ गैप जो है वो कस्टमर गैप है.
right? The fifth gap is not in the hand of company, so you cannot, when something is not in your hand, you cannot manage it, right? फिर आप उसको manage नहीं कर सकते हो. तो gap number 5, it is a perceptual gap, वो customer का gap है, उसके लिए we cannot make strategies, right? So that is what the gap model all about. बहुत लंबा था, but 3 लेक्चर में हुआ ख़त्म. Okay. Now as far as gap model is concerned, if you still have any doubt, you can just send me the message, right? I may be able to resolve the query on WhatsApp, right? So take care and refer this gap model because ये बहुत complex topic है, right? And ये काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी आया है. It is very important topic, right? And I suppose we are done with the service marketing, right? If you have any doubt, if you have any query about the services, service marketing, जो भी है, you can always WhatsApp me, right? And एक कुछ IPLC के पार्ट 3 में, right? IPLC के पार्ट 3 में कुछ 2 से 6 मिनट के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस है. मतलब people have sent me मैसेज के इसमें कुछ डिस्टर्बेंस है. तो मेरे हिसाब से तो सब सही है, मैंने पूरा वीडियो मेरा चेक किया है, बट स्टिल इफ़ देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस, तो वो जो 2 से 6 मिनट वाला पार्ट है IPLC पार्ट 3, राइट, IB की बात कर रहा हूँ, वो मैं आई विल पुट इट ऑन द, मतलब वो ऑडियो फाइल बना के मैं आपको बता दूंगा, या फिर IB के लेक्चर में मैं आपको समझा दूँगा, राइट. सो दैट्स व्हाट फ्रॉम माय एंड. बी सेफ and all the best.